हरिओम फ्रेंड्स, नमस्कार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन to spiritual channel in which we always speak about one morning mantra. One morning mantra which gives us a lot of strength and its meaning. Different mantras for morning mantras which have different meanings, different reasons for these mantras, and by uttering these mantras we have spiritual development and upliftment. Today's mantra: ब्रह्म मेध्या मधु मेध्या ब्रह्म मेव मधु मेध्या. I repeat, ब्रह्म मेध्या मधु मेध्या ब्रह्म मेव मधु मेध्या. Meaning, may we realize Brahman with our purified understanding. May we realize the highest bliss with our purified understanding. May we realize Brahman, who is the highest bliss, with our purified understanding. Now, what is Brahman? It is the ultimate reality. What is ultimate reality? God, Ishdev. By whatever name we call God, names can be different, but the reality, the ultimate reality remains the same. So, in this mantra, what we are praying to God? We are praying to God that, oh Lord, let us go for that ultimate reality. Please bless us so that we realize you with our purified understanding. What is understanding is required? Purify. It should be purified. And we should realize the highest bliss. The highest, what is bliss? The highest happiness in this life. With our, again, the understanding which should be pure. And then what we are asking from the God, what we are praying from the God, that we realize Brahman, that we realize you. By how? By our pure understanding. And we are saying, God, you are the highest bliss. So, in the end, we are saying, God, we want to achieve you, we want to attain you by our purified understanding, and you are the ultimate highest bliss. Nothing is greater than you. Nothing more happiness is as great as you are. You are the highest. By achieving you, by getting you, by knowing you, by loving you, by understanding you, and by our purified thoughts, action, and behavior, we want to attain the highest happiness in this world. The highest happiness, and that is you. You. So please bless us so that we achieve you, that we are asking for. Now I will speak this in Hindi. The meaning. प्रिय साथियों, मैंने अभी मंत्र बोला है संस्कृत में. इसमें हम ये प्रे कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, हे प्रभु, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम आपको पा सके. ब्राह्मण कहा है इसमें कि हम आपको पा सकें, आपको हम पाने की चेष्टा कर सकें. वो कहा है कि अल्टीमेट रियलिटी आप, अल्टीमेट रियलिटी कि प्रभु आप ही सब कुछ हैं. पर इसके लिए हमें क्या चाहिए प्रभु? हमें प्योरीफाइड अंडरस्टैंडिंग चाहिए. प्योरीफाइड क्या होता है? स्वच्छता. स्वच्छता किससे आती है? स्वच्छता किससे आती है? सिर्फ नहाने से स्वच्छता नहीं आती है. नहाना भी जरूरी है, पर स्वच्छता आती है हमारे थॉट्स, हमारे विचार वो स्वच्छ हो, हमारा जो शरीर है वो स्वच्छ हो, हमारे एक्शन जो हैं, हमारा जो हम कर्म करते हैं, जो हम कर्म कैसे करते हैं? बोलने से या हमारे एक्शन से. जो हम किसी के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, क्या हम कैसे अपने उसके लिए विचार रख रहे हैं, कैसे हम अपने अपने हाथ पांव पैरों से, बोलने से, देखने से, सुनने से, कैसे हम इस दुनिया में हम अपने आप को पेश कर रहे हैं, कैसे हम व्यवहार में लोगों के साथ आ रहे हैं,
हम अंदर से कैसे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उससे हमारी स्वच्छता हमारी प्योर बनती है। तो हमने स्वच्छ बनना है। तो हम कह रहे हैं प्रभु हम आपको पा सकें बाय अवर प्योरीफाइड अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारी समझदारी प्योर बने। फिर हम कह रहे हैं मे वी रियलाइज द हाइएस्ट ब्लिस विद अवर प्योरीफाइड अंडरस्टैंडिंग। हाईएस्ट ब्लिस, ब्लिस क्या होती है? इंग्लिश में इसका उच्चारण होता है प्योरीफाइड हैप्पीनेस। देखिए इस दुनिया में बहुत हम खुशी पाने की कोशिश करते हैं, वस्तु से, इंसान से, पर वो एक हैप्पीनेस बड़ी टेम्पररी होती है। आप सोच के देखिए कि इस दुनिया में जो चीज टेम्परेरी है, जो चीज परमानेंट नहीं है, जो अस्थाई है, तो उससे हैप्पीनेस क्या हमें परमानेंट मिलेगी? क्या वो हैप्पीनेस पूरी अल्टीमेट होगी? नहीं। सो हम कह रहे हैं कि आप ही हाईएस्ट ब्लिस हो। सबसे बड़ी हैप्पीनेस, परफेक्ट हैप्पीनेस जो है उसको ब्लिस कहते हैं। तो परफेक्ट जो खुशी है, जो संपूर्ण खुशी है, वो आप हैं। तो हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि हम आपको रियलाइज कर सकें, वो खुशी को, सबसे बड़ी खुशी जो है वो हम पा सकें अपने प्योरीफाइड अंडरस्टैंडिंग से। हमारी जो समझदारी है, हमारा जो समझ है, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो बुद्धि है वो हमारी प्योर बने, हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बने। उससे हम सबसे बड़ी जो खुशी है वो पा सकें। फिर हम क्या कह रहे हैं? प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हम ब्राह्मण को पाए, मतलब अपने इष्ट देव को, गुरुदेव को, दुर्गा माँ को, जो भी आपको आपको जिनको आप मानते हैं, उनको हम पाने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वही सबसे बड़ी खुशी है और उसी को हम रियलाइज करें। किससे? फिर हम कह रहे हैं कि हमारे प्योरीफाइड अंडरस्टैंडिंग से, हमारी सद्बुद्धि से, सद्बुद्धि प्योर हो, ऐसी हमें हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि हम आपको पा सकें अपनी प्योरीफाइड अंडरस्टैंडिंग से। आप सबसे बड़ी खुशी हैं दुनिया की, आपको पाना है हमने। ये हम पाने की उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आप तक पहुंच सके और हमारी जो समझदार है वो प्योर बने, इससे हमें सबसे बड़ी खुशी मिले। आप जो भी पाने की खुशी करते हैं दुनिया में, वो खुशी जो होती है वो सबसे बड़ी खुशी तो दुनिया की है। जो भगवान को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। तो हमने अपने मन से हमने अपना लक्ष्य बनाना है। द एम ऑफ द लाइफ इज टू अचीव गॉड। द एम ऑफ द लाइफ इज ओनली टू गेट सेल्फ रियलाइजेशन। यही जीवन का मूल एम है, यही हमारा जीवन का हमारा लक्ष्य है और ये हमारा जीवन का यही हमारा जो है हमारा जीवन सिद्ध अधिकार भी है। हम मनुष्य जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है, ये सबको पता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सबको पता है। तो लेकिन हम कहाँ हैं? हम खुशियाँ छोटी चीज़ों में देखते हैं, पैसे में, वस्तु में, सब चीज़ों में। सब चीज़ें जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कितनी इंपॉर्टेंट है। पर हमारा मेन एम के लिए, हमारी हम मेन एम लाइफ का क्या है, उसको लक्ष्य को ध्यान में रहते हुए हमने ये देखना है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्योर इस संसार में हमारी है या रख पा रहे हैं। जैसे कमल जो होता है वो कीचड़ में रह के भी कमल ही रहता है। ये जो मैं आपको व्याख्या इसमें विस्तार में कर रहा हूँ, ये मंत्र की विस्तारता जो दे रहा हूँ ये अपने मैं मन से ऐड कर रहा हूँ मैं। तो इंग्लिश का हिंदी में मैंने उसका उच्चारण किया है, उसका मैंने ट्रांसलेट किया है। तो एक बार लास्ट में हम फिर से संस्कृत का हम मंत्र पढ़ेंगे और इंग्लिश का मीनिंग मैं आपको नोटबुक से देख के बताऊंगा मैं। देखिए, ब्रह्म मेधया मधु मेधया, ब्रह्म में मधु मेधया। मीनिंग, may we realize Brahman, meaning the ultimate reality, with our purified understanding. May we realize the highest bliss with our purified understanding. May we realize Brahman, who is the highest bliss, with our purified understanding. Hari Om Tat Sat
प्रणाम गुरुदेव। थैंक यू। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।